सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Now we are going to start changing of verbs, changing of tenses in narration or direct and indirect speech. Beta, in indirect speech, we have seen if there is past tense in reporting speech, then we will have to change tense in indirect speech in reported speech. अगर हमें रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी माजी में दिया गया है सेंटेंस, तो रिपोर्टेड स्पीच में हमें टेंस चेंज करना पड़ता है, वर्ब चेंज करना पड़ता है। ये उसकी चेंजिंग है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हम चेंज करना चाहें तो टेंस हमें चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंजिंग होगी वर्ब की, टेंस की, हियर वी विल सी। अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट टू बी वर्ब्स मिले, प्रेजेंट टू बी वर्ब्स हों, is, am, are, then these will be changed into past to be verbs was, were। प्रेजेंट टू बी वर्ब्स को हम पास्ट टू बी वर्ब्स वाज वर में तब्दील करेंगे। सेकंड वन, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इट विल बी चेंज इनटू पास्ट सिंपल टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, here we have is, am, are in the form of continuity. They will have ing form with them. These will be changed into past continuous tense was, were. Okay? If we have present perfect tense in direct speech, has and have, these will be changed into past perfect tense, had. Then the last one is present perfect continuous tense, has been and have been. These will be changed into past perfect continuous tense, had been. Here you will see all the present tenses will be changed into, will be converted into past tenses. Okay? Now, if we have the past tenses in direct speech, what we will do? Here, past to be verbs was, were will be changed into had been, and past simple tense will be changed into past perfect had, and past continuous tense was, were will be changed into had been, past perfect continuous tense, and past perfect tense had will remain same, had will remain same, and past perfect continuous had been will also remain same, had been. So you can see here the present tenses, all the present tenses, सारे प्रेजेंट टेंसेस जो हैं पास्ट में चले जाएंगे। जैसा टेंस प्रेजेंट में वैसा ही पास्ट का टेंस। और जो पास्ट टेंसेस हैं, प्रेजेंट टू बी वर्ब, पास्ट टू बी वर्ब, वाज, वर, वो हैड बीन में हो जाएंगे। ओके? उसके बाद पास्ट सिंपल टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में होगा। पास्ट सिंपल टेंस पास्ट परफेक्ट में मींस एक टेंस को छोड़ के तीसरे टेंस में, पास्ट के तीसरे टेंस में। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस ये भी एक टेंस को छोड़ के मींस पास्ट कंटीन्यूअस के बाद कौन सा आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस, उसको छोड़ के पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा। उसके बाद तीसरा टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस सेम रहेगा, हेड रहेगी। और चौथा टेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैड बीन, वो सेम रहेगी, हैड बीन। Now changing of future tenses. First of all, future to be verbs. If we have future to be verbs, shall be and will be in direct speech, then these will be changed into should be and would be. And future simple tense into should and would. Future continuous tense will be changed into should be and would be.
they will have ing form with them. Future perfect tense shall have, will be changed into should have and would have. Future perfect continuous tense will be changed into shall have been and will have been, will be changed into should have been and would have been. तो कॉमन पॉइंट इसमें क्या है? फ्यूचर टेंस में कॉमन पॉइंट ये है कि शल और विल की जगह पे हम सिर्फ शुड और वुड यूज करेंगे. कॉमनली हम वुड ही यूज करते हैं. अगर हम करना चाहे तो आई और विल के साथ शुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये चेंजिंग है फ्यूचर टेंसेस की. सेम रहेगा, सिर्फ शल और विल की जगह पे ये फार्मूले के तहत याद करना है कि वुड और शुड लगानी है बस. प्रेजेंट टू बी वर्ब्स जी असां डायरेक्ट में इनडायरेक्ट कंदासीं प्रैक्टिस में. ठीक है ना? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिस. प्रैक्टिस में हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी करेंगे? प्रेजेंट टू बी वर्ब्स की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे. ओके, लेट्स टेक एग्जांपल. ही said to me, I am a rich boy of this city. I am a rich boy of this city. अगर हम इसकी इनडायरेक्ट करेंगे तो रूल्स को अभी फॉलो करेंगे. ओके, क्यों? यहां पे पास्ट में है. ओके, अगर पास्ट में रिपोर्टिंग स्पीच है, इसको क्या कहते हैं बेटा? हमने कल पढ़ा था, रिपोर्टिंग स्पीच. इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच. ओके, और दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच. ओके, नाउ he said to me, this is the reporting speech. I am a rich boy of this city. This is called reported speech. हिनके असां reported speech होना हूँ, हिनके reporting speech होना हूँ. Okay. Now we have to follow 5 to 6 rules to change direct speech into indirect speech. 6 rules के follow करना हुआ, कायदन के follow करना हुआ, direct speech में indirect speech करना. डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच करने के लिए हमें 6 रूल्स को फॉलो करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैव ऑब्जेक्ट विद वर्ब, यू हैव हियर ऑब्जेक्ट. जे करें हिन वर्ब सां गॾु ऑब्जेक्ट लगल आहे. टू मी आहे, टू हर आहे, टू हिम आहे, टू देम आहे, त देन वी हैव टू चेंज सेड इनटू टोल्ड. अगर सेड है तो उसको हम टोल्ड में करेंगे. किस में करेंगे चेंज? टोल्ड में चेंज करेंगे. जे करें सेड तेने कैसा टोल्ड में चेंज करना है. दिस इज योर फर्स्ट रूल. सेकंड रूल, रिमूव टू. टू को खत्म करो. टोखे थे खत्म कंदा से. टोखे खत्म करे असा ऑब्जेक्ट लाए रखदा. दिस इज योर सेकंड रूल. थर्ड पॉइंट, तीसरी पॉइंट क्या है? चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन से पहले हमको ये जो कामा और इन्वर्टेड कामा है इसको रिमूव करना है. इसको रिमूव करने के लिए असर्टिव सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस जो है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसको हम कहते हैं, बयानी जुमला. बयानी जुमला अगर हमें हमारे पास है सेंटेंस में तो इसके लिए हम कंजक्शन दैट इस्तेमाल करेंगे. कामा और इन्वर्टेड कामा को खत्म करके क्या यूज करेंगे? दैट. दिस इज योर थर्ड पॉइंट. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई फोर्थ रूल. जो फोर्थ रूल है चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन की तब्दीली. प्रोनाउन की तब्दीली करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला सन. सन के मुताबिक, ये आपका फार्मूला है सन. सन के मुताबिक प्रोनाउन की चेंजिंग करेंगे. मींस अगर हमें फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन कौन से हैं? फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन जो है बेटा वो है आई और वी. आई और वी. अगर हमें सेंटेंस में आई और वी दिख रहे हैं
So these will be changed into is. Is means subject of reporting speech. It will be changed into subject of reporting speech. अगर I और we हो, ये दो सिर्फ फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, तो हम इनको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में. तो हम यहाँ क्या लाएंगे बेटा? ही. दिस इज योर फोर्थ रूल. ओके. इसमें अगर सेकंड पर्सनल प्रोनाउन हो, क्या हो बेटा? सेकंड पर्सनल प्रोनाउन यू. अगर इसमें सेकंड पर्सनल प्रोनाउन यू होता तो हम ओ में चेंज करते. ओ मींस रिपोर्टिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है, तो इसमें चेंज करती. ठीक है बेटा. अगर यहाँ यू होता तो हम जो मी का सब्जेक्टिव केस है आई वो रखते यहाँ. क्लियर? द थर्ड आफ्टर दिस फिफ्थ रूल, दिस इज द मेन रूल, दिस इज द मेन पॉइंट टू डू. अगर हमें ये पास्ट में मिला हुआ है, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, तो ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे. मगर ये जो पास्ट में हमें दिया गया हो, अगर पास्ट में है तो ये रूल वी हैव टू अप्लाई. ओके, दिस रूल हैव टू बी अप्लाइड. ओके, व्हाट इज दैट रूल? व्हाट इज फिफ्थ रूल? फिफ्थ रूल इज चेंजिंग ऑफ टेंस. चेंजिंग ऑफ टेंस, चेंजिंग ऑफ वर्ब. Here we have present to be verb. Present to be will be changed into past to be verb, was or were. अगर हमें present to be verbs दिया गया है तो इसको हम चेंज करेंगे past to be verb, was और were में. तो हम यहाँ रखेंगे was. He was. Okay, this is your fifth rule. उसके बाद जो सेंटेंस है, he was a rich boy of. Here we have again this will be changed into that. This will be changed into that. So this is your fifth rule. Okay, sixth बल्कि ठीक है. ही था जो सिक्स्थ रूल आहे, इनखे फॉलो करणो आहे. जेकॾहिं असांखे दिस आहे देट में, जेकॾहिं दीज आहे दोज में, जेकॾहिं नाउ आहे देन में, ठीक है ना, ये चेंजिंग सिर्फ तव्हांखे एनी हाउ करणी पवंदियूं. ओके. उन खां बाद में असां रखंदासीं सिटी. लुक अगेन, वी हैव अप्लाइड हियर 5 to 6 rules to change direct speech into indirect speech. हिते असां 5 खां 6 रूल्स अप्लाई कया आहिनि डायरेक्ट स्पीच खे इनडायरेक्ट स्पीच में करण जे लाइ. सेंटेंस कहिड़ो आहे? असर्टिव सेंटेंस आहे, पॉजिटिव सेंटेंस आहे, टू बी टेंस जो, टू बी वर्ब जो. ठीक है बेटा. हाणे अभी हम क्या करेंगे? रिपीट. ठीक है. वी आर गोइंग टू रिपीट दीज रूल्स टू रिमेंबर इट. यू हैव टू रिमेंबर इट इन योर माइंड. ऑल टेंसेस विल फॉलो दीज रूल्स. कोई भी टेंस रूल्स के बिना नहीं होगा. कोई भी डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं होगी जब तक हमें ये रूल्स नहीं आएंगे. वी कांट डू विदाउट दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले सेड को टोल्ड में किया. सेकंड में टू को खत्म करके ऑब्जेक्ट रखा मी. थर्ड रूल, कामा और इन्वर्टेड कामा को खत्म करके डेट लगाई. असर्टिव में डेट लगाते हैं. उसके बाद चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन की अकॉर्डिंग टू सन फार्मूला. उसके बाद चेंजिंग ऑफ टेंस और वर्ब की है. उसके बाद चेंजिंग ऑफ दिस इनटू दैट. ओके, these are the 6 rules to follow. Today we are going to start practice of present simple tense. Means we are going to do indirect speech from direct speech. First of all, we will see the first sentence. He said to me, I help you. In reported speech, here we see the present simple tense. So now we are going to do its indirect speech. We are going to convert it into indirect speech. First of all, we will say he told me that he helped me. Means
we applied here rules. First we applied conversion of said into told, and second remove to and used here the object form, object of direct speech me. The third one, we removed a comma and inverted comma and we used here that. And fourth one, here we have I, we change it into he because according to Sun formula. Because first personal pronoun is converted into the subject of reporting speech. That's why we use here he. And the next one is changing of verb. This is the present form. We use here past form. Okay. And last one, changing of pronoun. We have here objective case of you. That's why we use formula. You is always change into object. Okay, we need here objective case. That's why we used me here is object. These are the changings we have to do. Means changings are same. The rules to convert the direct speech into indirect speech are same, but we have here new thing, which is changing of tense, changing of verb. Okay, in each and every sentence we have to change tense. Rules will remain same. Look here. She said to Ali, you waste your time. You waste your time. Now it's indirect speech. She told Ali that Ali wasted his time. We can use here he because there is repetition of noun Ali. So we can also use here he wasted his time. Third one, he said to him, they abuse me. This is also present tense. They told him that they abused him. Here we apply the rules. Said will be changed into said has been changed into told, and we have removed here to and used object, and we have removed comma and inverted comma and used that, and this is the third personal pronoun. Third personal pronoun always remains same in direct speech and in indirect speech. There is no change of third personal pronouns. Here we have converted tense from present to past. These are the rules to change direct speech into indirect speech. If we have the present simple tense, it will be converted into past simple tense in reported speech. Today we are going to start narration of to have verbs. To have verbs means have in present in possessive form. Have जब हम possessive form में यूज करते हैं means when they show ownership of subject, possession of subject. For example, I have a pen in my hand. I have a mobile. This is showing here possession, ownership. Okay, these are called to have verbs. These are called to have verbs. Present to have verbs, has and have. Now, if we have has and have means present to have in direct speech, we will convert these into had. Okay, अगर हमें प्रेजेंट टू हैव डायरेक्ट स्पीच में मिले तो हम इसको पास्ट टू हैव में चेंज करेंगे. मीन्स हैव और हैज को हेड में तब्दील करेंगे.
फॉर एग्जाम्पल she said to me I have a son. I have a son. ओके तो जब हम इसकी इनडायरेक्ट करेंगे तो she told me that she had a son. इसको चेंज करो, I have a smartphone. I have a smartphone. अब जब हम इसकी इनडायरेक्ट करेंगे, सेंटेंस क्या है? She said to me I have a smartphone. इसकी जब हम इनडायरेक्ट करेंगे तो ये जो टू हैव वर्ब है इसको हम पास्ट टू हैव में चेंज करेंगे. वी विल कन्वर्ट इट इनटू पास्ट टू हैव. ओके, शी टोल्ड मी दैट, ये फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चेंज होगा तो इधर रखेंगे शी, उसके बाद शी हेड, हेड किस में हो जाएगा? हेड में. He had a smart phone. Okay. Now, if we have past to have in indirect speech, then what we will do? फिर हम क्या करेंगे? अगर past to have दिया गया हो इन डायरेक्ट स्पीच में तो फिर हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल सेकंड वन, ये पास्ट टू हैव की चेंजिंग है. अभी पास्ट टू हैव मींस हेड. अगर डायरेक्ट स्पीच में हमें हेड मिलेगी तो ये इनडायरेक्ट में भी हेड रहेगी, इनडायरेक्ट में भी हेड रहेगी. देखिए, he said to me, he said to me I had a laptop in childhood. He said to me I had a laptop in childhood. उसने मुझे कहा कि मुझे बचपन में लैपटॉप था. ओके, ये हो गया आपका पास्ट टू हैव. हेड मींस हियर इट इज शोइंग दैट समवन हैड अ लैपटॉप इन पास्ट टाइम. ओके, तो ये है पास्ट टू हैव. तो पास्ट टू हैव की जो हम चेंजिंग करेंगे, डायरेक्ट स्पीच में अगर पास्ट हो वो सेम ही रहता है, उसको हम चेंज नहीं करते इनडायरेक्ट में. लुक हियर, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट ही हैड, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट में चेंज होगा. ही हैड a laptop in childhood. In childhood. Okay, means here we learnt if we have present to have in direct speech, it will be changed into had past to have. If we have had means past to have in present in direct speech, then we will convert it in had means it will remain same, had will remain same. Now if we have future to have means shall have and will have. shall have and will have कैसे इस्तेमाल होती है, किसके लिए होती है? shall have and will have are used to show ownership of subject in coming time.
इन फ्यूचर टाइम। फ्यूचर में सब्जेक्ट की मिल्कियत दिखाती है, शैल हैव एंड विल हैव। तो उसकी इनडायरेक्ट कैसे करेंगे? उसकी जब हम इनडायरेक्ट करेंगे तो शैल हैव और विल हैव शुड हैव और वुड हैव में चेंज हो जाएगी, शुड हैव एंड वुड हैव में तब्दील करेंगे उसको।